I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. This lecture is about a very important topic of physical chemistry, and that is the chemical kinetic, in which we study about the rate laws, about the order of reactions and the different methodologies to measure these order of reactions. So in the very first lecture we will study about the rate law and what is the order of reaction and what are the half-life reaction. We will get familiar about the basic terms, about the basic concepts which are being used in this specific chapter. So before moving towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and like my videos if you are getting from them. And now have a look on the lecture in detail. So let's talk about the very basic concept of the chemical kinetics, that is the rate law. Rate law को हम इस तरह से define करते हैं that it is directly proportional to the sum of the concentration of the reactants being used in any reaction. Rate law is directly proportional to the concentrations of the reactants. कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको हम उनके एक्सपोनेंट्स की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज द रिएक्टेंट ए एंड दिस इज द रिएक्टेंट बी एंड वी आर हैविंग सी एंड डी in some specific reaction, and this small a, small b, small c and small d is indicating the concentration unit of that specific reactants and products. ये हमारे पास वो reactants हैं जो कोई भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोडियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम के 2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन एंड प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो दीज आर द कंसंट्रेशन यूनिट्स. ये हमारे पास इनके कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जिनको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट लॉ, दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentrations of that reactants. Now from these exponents we can decide about the order of reaction, but it is not sure that always order of reaction जो हमारा है वो इन exponents के equivalent हो. For example, अगर हम order of reaction of A की बात करेंगे तो A का जो exponent होगा that will be the order of reaction of A, और जब हम B की बात करते हैं तो जो B का exponent होगा that will be the order of reaction of B, और इन दोनों का जो sum होगा that will be the order of reaction of that specific reaction. लेकिन इसको हम हमेशा से नहीं कह सकते कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इसमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं Na एंड दिस विल बी द क्लोरीन 1, और अगर हम इनके एक्सपोनेंट को प्लस करें तो दैट विल इक्वल टू द 3, कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा. दैट विल बी अ चेंज. इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली ही हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज पावर विल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन यूनिट्स. सो रेट लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट विल टेल्स अस दैट हाउ रिएक्शन रेट इज रिलेटिंग विद द concentrations of the reactants. It tells us about the relationship of the reaction rate and concentration of that reactants. ठीक है. It not specifically tells us about the order of reaction. Order of reaction के बारे में हम डिटेल से जानेंगे when we will study in detail about the order of reaction. This is also very important term which is being used in the chemical kinetics chapter. When we talk about the half life of reaction, तो half life of a reaction is the टाइम पीरियड जब किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स जो होते हैं दे कंज्यूम्ड बाय देयर हाफ अमाउंट ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है. व्हेन द हाफ रिएक्टेंट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड during the course of reaction,
तो इसको हम जो इसका हाफ लाइफ होगी, हाफ टाइम होगा, उसको हम टाइम 0.5 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 0.5 इज इंडिकेटिंग द हाफ टाइम, जो कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, उस पूरे टाइम का जो हाफ टाइम होगा दैट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शंस। और इसमें हम इसकी कंसंट्रेशन जो होगी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0.5a। अब यहाँ पर दिस x, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे डिटेल से, तो वी विल सी दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो रिएक्शन स्टार्ट होकर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें obtain होती है, एंड दिस a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब x जो है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, दैट इज 0.5, मींस दैट हैव बीन कंज्यूम्ड बाय इट्स हाफ, ठीक है। तो सो एट t 0.5 x शुड बी 0.5a उन रिएक्शन के लिए जिसको हम कहते हैं कि उसने अपना हाफ लाइफ जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द केमिकल काइनेटिक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वी विल डिस्कस द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।